اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الملک الحق المبین خالق السماوات والارضین والصلاة والسلام علی صاحب الدعوة النبویہ والعصمة الفاطمیہ والصولة الحیدریہ والحلم الحسنیہ والشجاعة الحسینیہ والعبادة السجادیہ والمعاصر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنقاوة النقوية والحيبة العسكري والغيبة الإله القائم بأمر الله بلند صلوات جیسے کہ کل کی مجلس میں نے کچھ عمل کا ذکر کیا تھا کہ مسلسل ہمیں روایات سے ائمہ معصومین کے اقوال سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ ایسے اعمال ہیں کہ جن کو اگر ہم اپنی زندگیوں میں لے کر آئیں تو ہمارا نام عمل بہت وزنی ہو جاتا ہے، ان کا اتنا ثواب ہے کہ جن کو فرشتے بھی درج نہیں کر سکتے، جس کے بارے میں نے بتایا تھا وہ کون سا عمل تھا؟ پہلا درود کا، جو ہم صلوات پڑھتے ہیں محمد و آل محمد پر، اس کے پڑھنے کا جتنا ثواب ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اسی طرح دوسرا عمل کہ جو روایات سے معصومین سے ہم تک پہنچا ہے، جو ہمارے میزان کو بہت زیادہ سنگین کر دیتا ہے، وہ ہے تسبیحات اربع۔ جن کو نہیں پتا ان کو پتا ہونا چاہیے، یہ تسبیحات اربع ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ تسبیح ایسی ہے کہ کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ نماز میں سورہ الحمد پڑھنے کا خدا نے کہا ہے، اور الحمد ایک واحد ایسی سورہ ہے کہ جس کو اللہ نے کسی بھی چیز سے تبدیل نہیں کیا ہے، پہلی رکعت میں بھی واجب ہے، دوسری سورہ آپ جو مرضی چاہے پڑھے، دوسری رکعت میں بھی الحمد واجب ہے، البتہ جو دوسری سورہ ہے وہ آپ کوئی بھی سورہ پڑھ سکتے ہیں، اس کے لیے قید نہیں ہے، لیکن تیسری اور چوتھی رکعت میں کیونکہ بہت سے بچے الحمد پڑھتے ہیں، لیکن خدا نے کہا کہ بہتر ہے کہ الحمد کے بجائے تسبیحات اربع پڑھی جائیں، یعنی اس میں کچھ ایسی چیز ہے کہ خدا نے الحمد سے اس کو تبدیل کروایا ہے، کیونکہ یہ ایسی تسبیح ہے کہ جس میں تکبیر بھی ہے، جس میں تحویل بھی ہے، جس میں تسبیح بھی ہے، جس میں تحلیل بھی ہے، اللہ کے اس میں نام ہے۔ روایات میں بیان ہوا ہے کہ جب غروب آفتاب ہوتا ہے اور زوال آفتاب، اگر اس وقت اس کو 10 دفعہ پڑھا جائے تو اس کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ اسی طرح کیونکہ ہماری نمازوں میں بہت سی کوتاہیاں ہوتی ہیں، ان کوتاہیوں کو برطرف کرنے کے لیے نماز کے بعد بھی روایات میں آیا ہے کہ آپ تسبیحات اربع کو پڑھیے۔ اسی طرح کچھ ایام خواتین کے ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں خواتین اپنے آپ کو سمجھتی ہیں کہ ہم اللہ سے دور ہو گئے ہیں، ان میں آپ کو ذکر کرنے کی اجازت ہے، اس میں آپ وضو بھی کر سکتی ہیں، کوئی کہیں پر کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوا کہ اگر آپ ان ایام میں وضو کریں گی، باطہارت ہوں گی تو آپ کو ثواب نہیں ملے گا، نہیں، آپ جائیں جو نماز کے اوقات ہیں اس میں آپ وضو کریں، جس جگہ پہ آپ نماز پڑھتی ہیں اسی فرش پر بیٹھیے اور تسبیحات اربع کا ورد کیجیے، اس کا جو ثواب آپ کو ملے گا وہ اس وقت اس زمانے میں کہ جب آپ عالم قیامت میں جائیں گے تو وہ آپ کے نام اعمال میں درج ہوگا۔ وہ ایک ہارون رشید کو آپ سب جانتے ہیں، مولا رضا علیہ السلام کو جب اس نے مولا کو قید کروایا تھا، بر محمد وآل محمد صلوات، جب مولا کو مدینے سے اس نے اپنے پاس بلوایا تھا اور اس کے لیے اپنا ایک خاص آدمی جس کا نام تھا ضحاک اس کو بھیجا تھا کہ جاؤ امام رضا کو میرے پاس لے کر آؤ، تو وہ شخص مولا کے صحابیوں میں سے نہیں تھا، وہ صرف مامور تھا کہ مولا کو ان کے گھر سے، ان کے شہر سے ہارون کے شہر تک لے کے آنے کے لیے۔ اس نے پورے رستے جو مولا کو دیکھا اور مولا کی سیرت سے وہ مولا کا عاشق ہو گیا، یعنی مولا، اور اس میں صرف یہ ضحاک نہیں، بہت سے ایسے سپاہی تھے اس زمانے کے کہ جو مولا کے شیدائی ہو گئے تھے۔ وہ اپنی روایات میں وہ شخص یہ راوی کہتا ہے کہ میں نے مولا کو جو سب سے زیادہ چیز پڑھتے ہوئے دیکھی پورے رستے وہ یہی تسبیحات اربع تھی، کہ اس کا اتنا ثواب ہے کہ مولا کے
मैंने उनके जबान से जो मैंने ज्यादा से ज्यादा जिक्र सुना वो सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर का जिक्र था। इस तस्बीहात अरबा को आप जितना हो सकता है अपनी जबान से अदा कीजिए। बैठते उठते जब दुरूद पढ़ रही हैं उसके बाद एक तस्बीह इसकी भी शामिल कर लीजिए। ये बहुत ज्यादा, और हमें ये तस्बीह कहाँ तक पहुंची है? ये तस्बीह हमें रसूलुल्लाह से जनाब फातिमा ज़हरा को मिली और जनाब फातिमा ज़हरा से हम तक पहुंच रही है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। इसी तरह वो अय्याम के जिसमें ख़वातीन तो जैसे मैंने कहा कि आप अल्लाह से दूर नहीं हैं। आप ये मत समझें कि बस अल्लाह ने हमें फारिग कर दिया है, हम ना नमाज पढ़ सकते हैं ना हम कुछ और कर सकते हैं। आप प्लास्टिक की तस्बीह लें, उसमें पढ़ें, क्योंकि इन अय्याम में आप मौला के नामों को हाथ नहीं लगा सकते, बल्कि अगर आप पाक भी हैं तब भी बगैर वजू के अल्लाह के नाम, रसूल के नाम, 14 मासूमीन के नाम को हाथ लगाना हराम है। ये याद रखिए। इनके मैं अमूमन हमारे यहाँ लॉकेट्स आते हैं, मुहर्रमों में बहुत ज्यादा बटते हैं और खवातीन बच्चे ये हमेशा खरीदते हैं, छोटे छोटे मासूम बच्चे हमारे खरीदते हैं। लेकिन ये अपने बच्चों में भी और खुद में पावर करे कि अगर कोई ऐसी चीज है कि जो लॉकेट के तौर पर है, हमारे जिस्म को अगर लग रही है और मासूमीन का नाम है तो हमारा वजू होना जरूरी है। या तो उसके ऊपर आप प्लास्टिक की कोटिंग लगवा लें तो अलग चीज है, फिर हो सकता है, लेकिन कभी भी मासूम का लफ्ज आपके जिस्म से बगैर वजू के नहीं लगना चाहिए। तो इस चीज की बहुत रियायत करें। हम अमूमन पट्टियां पहनते हैं या अंगूठी के ऊपर नाम लिखा होता है, तो इस चीज की खास रियायत कीजिए कि बगैर वजू के हमें उस चीज को पहनना नहीं है, क्योंकि अगर हमारा हाथ लगता है तो वो हराम हो जाएगा। चाहे कि उस हालत में उसमें तो ऑब्वियस ही बात है ये चीज हराम होगी। तो तस्बीहात अरबा का सवाब इतना ज्यादा है, ये वो जिक्र है कि जिसको जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब बैतुल्लाह को बनाया था, मिलकर बनाया था ना, बाप बेटा ने, हजरत इब्राहीम और जनाब इस्माइल ने, उस वक्त जब वो खाने काबा को बना रहे थे तो यही वो जिक्र था कि जो उनके लबों पर था। ये ऐसा जिक्र है कि जिसके बारे में रिवायात है कि शैतान इस जिक्र को सुनते ही भाग जाता है। अगर वो कहीं भी आपके नजदीक होगा तो वो इस जिक्र को सुन के, दुरूद को सुन के आपके नजदीक नहीं आएगा। तो अगर किसी शख्स की जबान पर 24 घंटे इन्हीं दुरूद में से अल्लाह के नाम है, तस्बीहात है, तो कैसे मुमकिन है कि शैतान आपके नजदीक आए मिलकर खुद भी पढ़े, अपने घर वालों को भी पढ़ाएं, अपने बच्चों को ये तस्बीह सिखाएं। बहुत ही आसान सी सादा सी तस्बीह है। कोशिश करें, जो बच्चे बैठे हुए हैं अगर उनकी वालिदैन को नहीं आता तो आप अपने वालिदैन को सिखाएं। बहुत ही आसान है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है तस्बीह। ये बेहतरीन चीज है कि जो हम अपने घर में कर सकते हैं। तो 2 अमल आपको बताए, पहला है दुरूद का और दूसरा है तस्बीहात अरबा का। जैसे मैंने कहा जनाब फातिमा तो ज़हरा से मिली, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फातिमा ज़हरा के पास आए थे, एक रिवायत है कि जिसमें उन्होंने जनाब फातिमा से कहा था कि रात सोने से पहले पहले कुछ अमल करें। उसमें एक अमल ये था कि बेटा जब रात सोने जाओ बिस्तर पर, हम लोग क्या करते हैं, व्हाट्सएप की मोबाइल्स देखते हैं, आखिरी मैसेज किसका है, मोबाइल बंद करके रखते हैं, फिर सोते हैं। लेकिन हमारे रसूल क्या बता रहे हैं कि रात सोने से पहले एक उम्रा और एक हज करो। जनाब फातिमा कहती हैं बाबा इतने कम मुद्दत में मैं कैसे करूं? तो कहते हैं सिर्फ एक दफा तस्बीहात अरबा यानी सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर कहना है, सिर्फ एक दफा। और तुमने जैसे कि हज और उम्रा करके तुम पलट के आई हो, यानी पूरी रात में वो आपका एक हज और एक उम्रा लिख दिया जाएगा। ये बरकतें हैं जो हमारे रसूल ने हम तक पहुंचाई हैं। मोहम्मद वाले मोहम्मद बाबा दे बुलंद है सलावत। उनसे कहकर मैं कल दुआ करूंगी। आज जो है सीरियस। अच्छा, आखिर में करवा दूं। तो अज़ीज़ाने मोहतरम, ये 2 अमल थे कि जो आपको जिक्र के लिए इनायत किए गए। एक ऐसी चीज, तीसरी चीज जो है वो आपको अपनी जिंदगी में लेकर आनी है कि जिसके बारे में बहुत ज्यादा ताकीद है, और वो है हुस्ने खल्क। उसमें बहुत सी चीजें आ जाती हैं, आपकी जबान है, आपके हाथों से नेकियां हैं,
یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو آپ کا नाम आमाल को संगीन करती है, और अगर आप इससे दूर हटते हैं तो वहीं आपका जो बुरा वाली साइड का पलड़ा है वो भारी होना शुरू जाता है। एक बहुत आका कराती, आप लोगों ने शायद सुना हो, तफसीर कुरान बहुत ज्यादा बयान करते हैं। आका मोहसिन कराती वो अपने उस्ताद, अपने शागिर्दों से पूछते हैं, जवानों से, कि मुझे ये बताओ कि ऐसा कोई अमल है कि अगर तुम माफी अल्लाह से मांगना चाहो तो तुम्हें माफी नहीं मिलेगी, हत्ता कि अगर तुम्हारी जगह खुद रसूल आकर अस्तगफार करे तब भी तुम्हें इस चीज की माफी नहीं मिलेगी। तो शागिर्दों ने मुख्तलिफ चीजें बताना शुरू की, किसी ने कहा वालिदैन के हवाले से, किसी ने भाई बहन के हवाले से, किसी ने तर्क नमाज के हवाले से, लेकिन आका कराती कहते हैं कि जो चीज है वो है लोगों का मजाक उड़ाना, लोगों का तमस्खुर करना, उनकी नकल उतारना। जैसे अमूमन कोई अपाहज है तो बच्चे अमूमन उनकी नकल उतारते हैं, कोई अंधा है, या एक दूसरे से हम मजाक करते हैं कि जो मजाक हम अपने लिए पसंद नहीं करते तो हमें वो चीज दूसरों के साथ भी नहीं करनी चाहिए। ऐसा मजाक कि जिससे दूसरे इंसान का दिल दुख जाए, हम नहीं जानते कि हमारा ये मजाक उस शख्स के ऊपर क्या असर रखेगा। तो अगर आपने किसी का दिल दुखा दिया अपनी हरकतों से, आपने किसी का मजाक उड़ाया, अपने इर्द गिर्द के लोगों को हंसाने के लिए आप मजाक कर रहे हैं, लेकिन किसी मोमिन का दिल दुखता है तो इसका बहुत ज्यादा गुनाह है, आप नहीं समझ सकते। और यहाँ तक है कि रसूल भी अगर आपकी तरफ से उस चीज का इस्तगफार करते हैं तो आप उनकी भी वो इस्तगफार नहीं होगी जब तक कि वो बंदा आपसे खुद राजी ना हो जाए। तो इस चीज का हमें खास ख्याल रखना है। हम उस वक्त काश करेंगे, ए काश कि हमने ये मजाक ना उड़ाया होता, चंद पल की हंसी के लिए कि इर्द गिर्द वाले मुझसे खुश हो जाए, मैं मजाक करके दूसरों को खुश करूं। आपने खुश करना है, अच्छी बातों से खुश करिए। अरे हमारे पास तो अली का जिक्र है, खुश करना है तो शियों के सामने सिर्फ एक अली का नाम ले ले तो शिया खुश हो जाते हैं। आले मोहम्मद पे बुलंदर सलवार। मौला अली अलैहिस्सलाम मेरी जाने खुदा हो मेरे इमाम पर, मौला कहते हैं कि जब भी आपके पास कोई कीमती चीज होती है तो उसकी हिफाजत के लिए कुछ ना कुछ होता है। जैसे कोई संदूक है तो उसकी हिफाजत ताले से की जाती है। आपके ईमान जो कि सबसे ज्यादा एक मोमिन की कीमती तरीन चीज है, उसका ताला क्या है? मौला अली अलैहिस्सलाम कहते हैं कि ईमान का ताला आपकी नरम कलामी है, आपका अच्छे अंदाज से कलाम करना है, नरमी से कलाम करना है। लेकिन आजकल का माशरा ऐसा हो चुका है, लोगों की बदखलकी इतनी बढ़ गई है कि लोगों के पास जाते हुए डर लगता है कि कहीं ये शख्स हमारी सरेआम बेइज्जती ना कर दे, इसकी जबान से ऐसे कलमात अदा ना हो जाए कि जो बदअखलाकी के जुमरे में आते हैं। जो लोग इस तरह के हैं कि जिनके पास लोग आने से डरते हैं, वो नहीं जानते कि उनका हिसाब किताब कैसा होगा। लेकिन अजीजान, हमें सिर्फ अपने आप को देखना है। क्या हम ऐसे तो नहीं है कि लोग हमसे डरते हो? क्या हमारी जबान, हमारा इखलाक ऐसा है कि जैसा कि मौला ने हमारे लिए बताया है? हमारे जितने भी असहाब हैं वो सारे असहाब ऐसे थे। मौला के जितने असहाब उठा रहे, उनकी मुख्तलिफ शख्सियात है, अहले मार्फत है, अहले तकवा है। आज मैं एक शहीद का जिक्र करूंगी, वो शहीद के जो करबला में सैयदुल कुरा के नाम से था, जो कूफे में सैयदुल कुरा के नाम से पहचाना जाता था। अहले मार्फत ये कौन सी शख्सियत है? ये बुरैर बिन खुजैर है। आम तौर पर इनका जिक्र हमारे यहाँ नहीं होता है, लेकिन ये 72 शहदाए करबला में से हैं। सैयदुल कुरा ये वो थे कि जिनको कुरान से प्यार था, इश्क था कुरान से। इनको सैयदुल कुरा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कुरान से, इनके पास खुद कुरान का इल्म था, ये इनकी खिताबत बहुत ज्यादा अच्छी थी। और तीसरा कि आप ज़ुहद में बहुत आगे थे। जब आप कुरान पढ़ा करते थे तो इमाम हुसैन बाकायदा रिक्वेस्ट करते थे कि मेरे लिए कुरान पढ़ा जाए। कूफे में कभी किसी ने इनको ऐसे चेहरे के साथ नहीं देखा कि कहीं गुस्से के असरात हो। लोग बदतमीजियां कर जाते थे, लेकिन बिल्कुल जैसे चिल इंसान होता है कि इस शख्स को तो गुस्सा ही नहीं आता। और इनके बारे में रिवायात है कि आशूरे के दिन जब लोग इनको देख रहे थे, सहाबा देख रहे थे, तो मुसलसल इनके चेहरे पे एक खुशी
का एक ऐसा एहसास था कि मुसलसल पूछ रहे थे कि बुरैर ये इतनी खुशी आप जानते हैं आज क्या दिन है? उन्होंने कहा हाँ मैं जानता हूँ कि हम सब शहीद होने वाले हैं, लेकिन जब से मेरे मौला ने वो पर्दे हटा दिए हैं मेरी आंखों से, मैं तब से बेचैन हूँ कि बस मुझे वो मकाम मिल जाए। अजीजान, इमाम हुसैन की आदत थी कि करबला में एक एक बंदे पर हुज्जत तमामी की है, बार बार उन लोगों के सामने खुतबे दिए हैं, और मौला सिर्फ खुद खुतबे नहीं देते थे, मौला एक एक बंदे को भेजते थे। कभी जनाब अब्बास को खुतबे के लिए भेजा है कि जाओ, हो सकता है कि कोई इस तरफ आ जाए, कोई अल्लाह की तरफ आ जाए। एक दफा इमाम हुसैन ने जनाब बुरैर को भेजा है। अजीजान, कारी कुरान है, हाफिज कुरान है, लेकिन कुरान की आयतों से नहीं। उन्होंने सोचा कि मैं इनकी फितरतों को उजागर करता हूँ। जब गए हैं इन लोगों से कलाम करने तो क्या कहते हैं, वो देखो सामने खेमे नजर आ रहे हैं ना। अगर हुसैन यहाँ पर जंग करने आता तो क्या 6 महीने का नन्ना अली असगर लेकर आता? अरे तुम खुद सोचो कि अगर कोई जंग करने आता तो क्या अपनी 3 साला बच्ची को लेकर आता? अरे हुसैन फसाद की नियत से नहीं आया है, तुम क्यों नहीं समझते हो? क्या तुम्हें वहां से अलतश की आवाजें नहीं आ रही? अरे बच्चे बिलक बिलक के कह रहे हैं अलतश अलतश। बस मैं कहूंगी जनाब बुरैर आप बर्दाश्त न कर सके। अरे आप तो साक़ी कौसर न थे। अरे मेरा अब्बास जिसको साक़ी कौसर का लक़ब मिला, अरे उसने कैसे बर्दाश्त किया होगा कि सकीना अलतश कर रही है। अरे सकीना के लिए मश्क लेकर गए थे ना, लेकिन मश्क तो छिद गए तो अब्बास भी कैसे बर्दाश्त किया होगा। अरे वहां पर ज़हरा की लाडलियां प्यासी है, अरे ज़हरा का हुसैन प्यासा है। बस जनाब बुरैर ने खिताबत के जौहर दिखाए और जब जंग के लिए निकले हैं तो पता नहीं कितने ही यजीदियों को फिन्नार किया है। एक मौका ऐसा आया कि ज़मीन करबला के बल घिरे हैं और चूमा है करबला की जमीन को, कहा या अब्दुल्लाह मेरी कुर्बानी कबूल करे। अरे बयान किया जाता है कि वहाँ एक शख्स था कि जिसने इसी बुरैर से कुरान पढ़ा था। अरे वो निफरीन करता है, अरे इसने तो कुरान पढ़ाने को गाड़ दिया। अरे मैं कहूँगी कि कुरान पढ़ाने वाले को इतनी इज्जत दी जा रही है। अरे वो सरे हुसैन कि जो नौके नेज़ा में भी कुरान पढ़ रहा था, उसको तुम लोग पत्थर मार रहे थे। अला लानतुल्लाहिल कौमिज़ ज़ालिमीन व सया